Analyze how PED varies along the straight line downward sloping demand curve. ये कैसे करते हैं? Because PED does vary along the straight line downward sloping demand curve. Any idea? So is it that at the like the high point of the curve where the prices are high, our elasticity we have it's more price elastic, while when it's downwards and the prices are low, it's price inelastic. So the question is why? It is asking you Yeah. how it changes. How? Yeah. Can you tell me how it changes? Not exactly. The top portion of the demand curve is elastic. Yeah. The bottom portion of the demand curve is inelastic. And probably the middle portion is unit elastic. Yeah. I have explained you, I remember I've explained you this, all three of you this, but I think you're forgetting the way the question is asked now. So in a way, question 1 and 2 is almost same, but they are asking in a very different way. Discuss the relationship between PED and the total revenue. So what is the relationship between PED and total revenue? I'm going to explain you this. Plus, I will explain question 2 with the help of question 1. So they are actually the same question. Okay? Question कह रहा है, question is trying to ask you that if the price of a good, let's say, is P, then quantity Q is demanded. If the price changes to P1, the quantity will be Q1. Correct? Yeah. Yeah. Similarly, if the price is P3, the quantity is Q3. And if the price is P4, the quantity is Q4. You know this. But the point is, how does the PED varies? अभी हम इसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे. Okay? Yeah. All right. We will see. We'll try and see. अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखना. I'm going to color it, so I'm sure you will understand. The rectangle P4Q4, if you calculate the area of rectangle P4Q4, will it be lesser or greater than the rectangle P3Q3? आपको देखने में कौन सा ज्यादा बड़ा एरिया लग रहा है? P3Q3. पक्का? Yeah. तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर किसी प्रोडक्ट का हम प्राइस बढ़ाते हैं, ए से हम बी पे जाते हैं, तो हमारा रेवेन्यू बढ़े. अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा. करेक्ट? Yeah. कहना ऐसे ये इनइलास्टिक गुड हो सकता है क्योंकि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है. लेट्स से आई एम सेलिंग सिगरेट्स. I can ask for higher prices. Yeah. Yet people will buy. Mm-hmm. I can sell a water bottle in some mountain region where people are trekking, and I can ask for double the price for water bottle, and people will buy because it's essential for living. Yeah. Yeah. I can sell alcohol at a higher price instead of A मैं B price charge कर सकता हूँ, फिर भी मेरे को revenue ज़्यादा मिलेगा. तो generally
प्राइस इंक्रीज करने से अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम इनइलास्टिक डिमांड पे हैं। अभी Okay. आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहे, करेक्ट? Yeah. But clearly, and this happens only when I'm in the downward region of demand curve. अभी सेम चीज अगर मैं यहां पे करता हूं, I am in this green area. Okay. Let's say मेरा रेवेन्यू अभी P1 Q1 है, ये वाला. Don't you think clearly मेरा P1 Q1 बहुत बड़ा एरिया है as compared to P and Q? Yeah. So अगर मैं इलास्टिक गुड का प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, Yeah. क्योंकि मुझे पता है कि लोग सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. Yeah. डू यू एग्री? Yes. शिवानी, डू यू एग्री? Yeah. So As the price, then as price increases, they'll look for substitutes too. so Yes. can we say that this has to be an elastic product Yeah. from C to D? तो Hmm. अभी हमने प्राइस इंक्रीज की बात की. let's just do the reverse now. अगर इलास्टिक प्रोडक्ट है मेरा, लेट्स से आई एम मेकिंग टी शर्ट्स, लेट्स से आई एम मेकिंग टीवी रिमोट्स, लेट्स से आई एम मेकिंग कर्टन्स, आई एम मेकिंग फर्नीचर, आई एम मेकिंग ट्रैक पैंट्स, आई एम मेकिंग स्पोर्ट शूज, आई एम मेकिंग एनी गुड, आई एम मेकिंग पॉट्स, गमले बाहर लगाने के लिए बालकनी में. ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इन सब के सब्स्टिट्यूट्स हैं. अगर मैं प्राइस कम करूंगा, डी से सी पे आता हूं, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा. पीपल विल कम टू मी बिकॉज माइन इज चीपर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. करेक्ट? Yep. तो अभी छोटे से 2-3 रूल लिख लेते हैं. रूल्स लिखते हैं, जस्ट स्टे हियर, डोंट कॉपी एनीथिंग. रूल्स लिखते हैं. whenever the PED is inelastic, ओके, जब भी PED inelastic होती है, it is always good idea to increase price or decrease price. Increase to increase revenue. एग्जैक्टली जैसे कि इस केस में A to B था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं A to B. राइट? मुझे पता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो इंक्रीजिंग द प्राइस इज अ गुड आइडिया बॉस. Yeah. If it's Right. elastic, it's the opposite. हाँ, मतलब मुझे पता है कि मेरे गुड का जो डिमांड है, Mm-hmm. whenever the PED is elastic, It's a good idea to decrease. it is always a good idea Decrease. to decrease the price Yeah. because you will attract more people. Yeah. यहाँ यहाँ तो हम D to C चले. अब इसका उल्टा लिखें फिर से. Yeah. Whenever the PED is inelastic, it is always a bad idea. Bad idea क्या है ये? Bad idea to Yes.
डिक्रीज द प्राइस, है ना। मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनएलास्टिक थी, मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता था अपने कस्टमर्स से, Mm. प्राइस रिड्यूस कर दिया। सो करेक्ट। Yeah, correct. नंदनी, आर यू विद मी? Yeah. We're going from B to A. You're, या हैव आई मेड इट इजी नाउ? yeah. पक्का सबको समझ में आ रहा है? Uh, नेवर मेमोराइज लॉजिक है ये। इसको कर देते हैं इलास्टिक। इट इज ऑलवेज बैड आइडिया टू इंक्रीज। करेक्ट। mm. अभी क्लियर? Yes. लेट्स से हमको ये तो क्लियर हो गया कि हम कैसे इस क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे, राइट? लेट मी गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन हाउ वी कुड हैव आंसर्ड दिस। मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको सेशन खत्म कर। I have given you this example, I'm sure, a lot of times, but I'm going to repeat it again. एक second, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक टेबल। ये आ गया। तो लेट्स से ये मेरा जो है प्राइस है, और ये मेरा क्वांटिटी है, और ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। वी हैव टू डू द टोटल रेवेन्यू टेस्ट। Mm. Mm. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। टोटल रेवेन्यू टेस्ट, राइट? तो एक टोटल रेवेन्यू टेस्ट करके देख लेते हैं। जब भी टोटल रेवेन्यू टेस्ट करेंगे तो टेबल बनाएंगे, वी विल हैव टू मेक दिस टेबल। ठीक है। let's Mm. let's take some hypothetical figure. Let's say all four of us, we have opened a cafe, and we are selling coffee for, let's say, 200 rupees. And That's in that day, we've been able to sell only one coffee. We've made a revenue of 200 rupees. So Nandini says, let's reduce it to 180 because बहुत ज़्यादा प्राइस है, people don't buy. So उस दिन हमारी दो कॉफी सेल हुई and we made 360 rupees and the trick to work. Yeah. Okay, Nandini says, let's continue this. तो 160 पे तीन कितनी हुई? 16 थ्री सा 42। तो हमारा 420 रेवेन्यू हो गया। नाउ शिवानी ऑल्सो सेज और रिड्यूस करते हैं, मजा आएगा, वील गेट मोर रेवेन्यू। 14 इंटू 4 इज 560। yeah. ठीक है। सो अब मैंने भी बोला कि यार बहुत सही लग रहा है, मजा आ रहा है, वी आर इंक्रीजिंग आवर सेल्स, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो ठीक है, 5 कॉफी सेल हो गई तो 600 रुपये का रेवेन्यू हो गया। अब तो मजा ही आ गया। और अब की बार अनहद ने बोला कि अब और कम, तो 6 कॉफी बिक गई। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, हमने प्राइस भी रिड्यूस किया और क्वांटिटी सोल्ड भी इंक्रीज हुई, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं। Yeah. तो हम सब ने सोचा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, लेट्स डू 80। तो 560 हो गया। कम हो गया। हमने और कोशिश की 60 करने की, और कम हो गया। 360. Sorry, not 480. व्हाट्स हैपनिंग इज, जब हम प्राइस रिड्यूस कर रहे थे तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा था। Yeah. कैन वी से पीपल वर रिस्पॉन्सिव? Yeah. पीपल वर रिस्पॉन्सिव टू आवर प्राइस, लोग हमारी स्कीम पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। Mm. और हमारा, लोग दूसरों की कॉफी छोड़ के हमारे पास आ रहे Alright. हैं। तो कैन बी से दिस पीपल आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू आवर प्राइस ना। Mm. इन अदर वर्ड्स कैन आई से कि यहाँ पे डिमांड Elastic. इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इलास्टिक। Elastic. Elastic. श्योर एवरीवन? Yep. इलास्टिक डिमांड है। यहाँ क्या हुआ, ये यूनिट इलास्टिक है। Mm. जितना परसेंटेज हमने प्राइस कम किया होगा,
उतना ही परसेंटेज हमारा क्वांटिटी ज्यादा सेल हुई, इक्वल था, तभी तो रेवेन्यू सेम आया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? Revenue went less. लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिवनेस लो है, प्लास्टिक हो गया। रिस्पॉन्सिवनेस लो है, राइट। हाँ, और मैंने यहाँ पे लिखा ये लो रिस्पॉन्सिवनेस है, और मैंने लिखा यहाँ पे ये इनइलास्टिक है। सॉरी यार, मैं आज राइटिंग पैड भी नहीं 2-3 दिन से ला पा रहा हूँ। it's ग्रेट। fine. अब कैन आई mark these points on a graph? Easily I can see that अगर मैं प्राइस ऊपर से शुरू करता हूँ, 200, 180, 160, 140, एंड देन 120, और फिर 100, फिर 80, राइट, फिर या 60, फिर 40, फिर 20, और फिर 0। आई नो जैसे जैसे मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, शुरुआत में Revenue इनिशियली बढ़ रहा है। इनिशियली मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा था, राइट। हाँ। मेरा रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ रहा था ना, ये हम्म। B2C आया था, हमने यही लिखा था। फिर That's revenue. that's exactly what I'm trying to tell you. डिमांड कर्व का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये इलास्टिक है। So can the PED varies on the same demand curve? Yes. Yeah. How will you prove it? With the prove help of it in the diagram. total revenue test. Once you have proved this through this table, this is your analysis. This is your answer. मैंने आपको आंसर पहले एडवांस में बता दिया so that it becomes easy for you. You've been asked, you've been asked, analyze. How is this possible? So you're saying yes, this is possible through a total revenue test. हम्म. तो ये हमारा inelastic portion हो गया. If you ask this to many people, many teachers also ना, वो भी नहीं ठीक से बताते हैं. और ये बीच वाला पोर्शन क्या है? यूनिट इलास्टिक. इज दिस क्लियर टू यू? Yeah, भूलेंगे तो नहीं ना आप लोग? yeah. योर क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन देखो मैं कैसे भी, आई कैन गिव यू सेम क्वेश्चन इन 2 more डिफरेंट फॉर्मेट्स. क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. Examine the determinants of price elasticity or demand and the relevance in the real world. हम सबको आता है. I don't think I need to discuss this. Shivani, Yes, yes. Nandini, okay Yes, with question number 3? yeah. Analyze the reasons. So, just one question before we move on. So for question 2 also we'll answer similar to this. Question 2 and 1 is the entire story of how will you prove that PED varies along the straight line curve? Mm-hmm. First, you will say that PED, yes, it varies along the straight line curve. The top portion is elastic, the bottom portion is inelastic, the middle portion is unit elastic because PD varies based on the responsiveness of the people, and this can be proved through total revenue test. Let's look at the table below, and then you will take a hypothetical example like this. Make a diagram. And then write why Yeah. it's a good idea, why it's a bad idea. तो पॉसिबली मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं पहले ये डायग्राम बनाऊंगा, Yeah. और जब मैंने प्रूफ कर दिया फिर मैं लास्ट में एनालिसिस के लिए ये भी बना दूंगा. Hmm. ऐसा होना. फाइनली दिस इज हाउ. Like I'm showing the boxes. I'm showing the revenue. दिख रहा है सामने क्लियरली. कब प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू कम होगा, कब प्राइस बढ़ा कम करके रेवेन्यू ज्यादा होगा या कम होगा. करेक्ट? Yeah. क्लियर है? Yeah. ओके. ये हमने किया था कल.
नंदनी के साथ, लेकिन the other two students I want to ask them. What's HL? No, that's none of your concern. छोड़ दो उसको. Huh. Higher level in IB. Oh, it's like A level. Yes. Oh. Okay. Analyze the reasons why PED of primary commodities is generally lower than the manufactured commodity. क्यों होती है प्राइमरी कमोडिटीज जो होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई या फिश हो गई या कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ के नेचुरल क्रस्ट से निकलती है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ओके, मतलब हम फैक्ट्री में उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, प्राइमरी गुड्स की बात हो रही है। प्राइमरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, वो ये कह रहे हैं लो होती है। लो मतलब, लो पूछ रहे हैं ना आपसे, लो मतलब इन इलास्टिक होती है देन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एनी आइडिया क्यों होती है? Because primary commodities are like high in demand. दे आर व्हाट? They're high in demand. They're needed. दे आर नीड, यस, दे आर So एसेंशियल फॉर। they're essential. Yeah, they are अगर that. अगर उसके प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे, इफ द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 200 rupee, People will still buy it. people will still buy it. Very few people will give up Yeah. because this probably something which is in our staple diet. We will continue to buy it. So, Manufactured goods is like an option. It can be a luxury good also. Like, so still manufactured goods have substitutes. So the demand is elastic. I can yeah. shift. So Nandini, do you remember the trick of the diagram? कैसे बनाएंगे diagram? You don't have to refer any of your notes. Just tell me, how will you make this diagram? इसमें diagram कैसे बनाएंगे नंदनी? Are you with me, Sorry, sir. Nandini? Sorry. Yeah, sir. My network was. Yeah, you were saying. What did you have? What were you How will you saying? make a diagram? For इसका diagram कैसे? the third question, fourth question. Sorry. Um, Fourth question. Yeah, sir. Diagram. So basically, yeah. Go ahead. Go ahead. We show the impact in demand through the shift in supply curve. I think. Okay. No, because we Oh, did this yesterday. ये तो कलर कॉपी हो गया यार, ये कैसे हो गया? चलो, दिस इज द क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है? Analyze the reasons PD for primary commodities is generally lower than the manufactured commodity. अभी क्या करें? The trick is PD का क्वेश्चन है, पीडी का क्वेश्चन Yeah. है, तो दो तरह की पीडीज हो सकती हैं, या तो इनइलास्टिक होगी बिल्कुल स्टीप, या फिर फ्लैट सा होगा इलास्टिक। या हमको पता ही है इनइलास्टिक है, एकदम से जब स्टीप बनाते हैं तो इनइलास्टिक होता है डिमांड कर्व, और ये इलास्टिक है, ये भी डिमांड कर्व है और ये भी डिमांड कर्व है। अब क्योंकि पीडी का क्वेश्चन है तो ट्रिक क्या है, हम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। मैंने सप्लाई कर्व ये बना दिया, ये भी बना दिया और ये भी बना दिया। सिमिलरली मैंने सप्लाई कर्व ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया। Why am I making 3 supply curves? Because I want to show if the price change. So the price change can happen this way, and the price change can happen this way as well, rightwards and leftwards. Nandini, clear है? Yes, sir. हाँ जी। शिवानी, Can you repeat one more time? I didn't understand. आई एम जस्ट सेइंग, अगर प्राइस चेंज होता है, द क्वेश्चन इज ऑन पीडी, राइट? पीडी के ऊपर क्वेश्चन है ना?
आई एम गिविंग यू अ ट्रिक कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनेगा, पीडी के क्वेश्चन में सप्लाई कर्व शिफ्ट होंगे और हम्म पीईएस के क्वेश्चन में डिमांड कर्व शिफ्ट। मैंने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया है, डिमांड तो वहीं का वहीं है, हम्म करेक्ट। तो yeah, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस ये था, हम्म और अगर प्राइस कम हो गया प्राइमरी कमोडिटीज का, अब आप मुझे बताओ, विल द फार्मर बी हैप्पी और सैड? प्राइमरी कमोडिटी है, Hmm. be प्राइस happy. प्राइस चेंज हो गया, पी से P1 ऊपर चला गया। Is he सप्लाई happy? Oh, मार्केट sorry. मार्केट में तो सप्लाई कम हो गई, व्हाई विल दे बी हैप्पी? Sorry. I thought it shifted down. नो नो, यू आर राइट, प्राइस कम हो गया है। सॉरी, क्वांटिटी कम सेल हो रही है ना। The price बढ़ गया है तो obviously suppliers will get happy. So your answer should be the percentage decrease in the quantity is much lesser than the percentage increase in the price. Hmm. भाई, clearly P into Q revenue versus P1 into Q1. Yeah. Can I say P1 into Q1 is greater than P into Q? तो फार्मर तो खुश हो गई, रेवेन्यू दिख रहा है साफ मुझे, Yeah. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, करेक्ट है। Yeah. बस यही बताना है। और अगर प्राइमरी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, लेट्स से S2 चली गई सप्लाई, बहुत ज्यादा प्राइस कम हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 40 रुपये केजी टोमेटो से अगर 5 रुपए केजी हो जाते हैं टोमेटो, तो हम सब रोज 10 किलो खाना शुरू कर देंगे। शिवानी, विल यू स्टार्ट ईटिंग 10 kgs टोमेटो एवरी डे? No. सो डिस्पाइट अ significant drop in the price from P to P2, the change in the quantity is not. So farmer is really not happy। अगर उसकी अच्छी क्रॉप भी होगी, ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है वो, तो Hmm. भी नॉट हैप्पी। आयरनी। डू यू नाउ सी अब मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप Yeah. यू कैन रिलेट टू इट, Yeah. एवरीवन। नंदनी, Yeah. सिमिलरली अ मैन्युफैक्चर्ड गुड, लेट्स से हम सब एक बेकरी के मालिक हैं, वी ओन अ बेकरी, लेट्स से we own a bakery and it has branches in multiple cities, okay। अब हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, we saw a significant drop in the quantity which is demanded by our customers because they may have shifted to some other substitute। Substitute. Clearly जो पहले रेवेन्यू था P इंटू क्यू, वो बहुत ज्यादा था, कंसिडरिंग P1 इंटू Q1। डू यू एग्री? Yeah. नंदनी, Yes, sir. सिमिलरली इफ एट ऑल प्राइस ड्रॉप होता है, थोड़ा सा भी हम प्राइस ड्रॉप कर देते हैं, विच इज दिस, बहुत ज्यादा लोग वापस आ जाते हैं या खरीदने लगते हैं हमारा Sir, बेकरी I का। have a question. Sir, in the question they're asking us, analyze the reasons why the price elasticity of demand for primary commodities is generally lower. So that means we're not telling them why it's lower, like we're analyzing the Why? Because reasons. of the because why? Because there are no substitutes and there are substitutes. Okay. That's it. And I'm just giving you an example of maybe something which doesn't have a substitute and the other things which has substitute. Pick up something which has no substitute. So Let's take up. you gave example for primary commodity for tomatoes and for manufactured good t-shirts. It could be oil as well. It could be water bottle. Yeah. थिंक ऑफ अ पेट्रोल इन इंडिया, प्राइस बढ़ता जा रहा है, बहुत कम लोग, मतलब कार चलानी है तो हमें डलाना पड़ेगा यार पेट्रोल और डीजल। यू सॉ दैट रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी,
ज्यादा प्राइस चार्ज करने के बाद भी बहुत कम लोग गिव अप कर रहे हैं. वेरी फ्यू पीपल माइट स्विच टू मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल. Yeah. करेक्ट. तो ये बोलने की कोशिश करो. थिंक कि कैसे द प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता है किसमें है? व्हाट इज द कल्प्रिट? कल्प्रिट क्या है बताओ मुझे. कल्प्रिट है ये शेप ऑफ द डिमांड. यही तो कल्प्रिट है. ये शेप ऐसी है. डू यू अग्री? ये शेप की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है. Yeah. Am I making sense? Can I move ahead? आ रहा है? क्लियर है? Question number 5. Discuss the significance of income elasticity of demand for firms and explain how changes in YD can affect the structure of the economy. Awesome. किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? You'll talk about types of goods also in this, right? Like normal goods, Correct. in goods. Say that again. You'll talk about the types of goods also, right? Like inferior goods and normal goods. Yeah, you can, but the question is something else. Income elasticity to change. वो कह रहा है कि पूरे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लोगों की इनकम बदलने से. क्या लोगों की इनकम जब बदली जाएगी, पीपल्स इनकम चेंज? It करेक्ट. can it can change the structure. हाउ? बस यही क्वेश्चन है. So related to, yeah, elasticity. इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, नॉट प्राइस इलास्टिसिटी. Yeah, income elasticity. कैसे होगा बताओ. If income is like low, then they won't demand certain goods and services because they don't have that much income. हम्म. And if income is higher, like they're receiving more wages, then they will demand certain goods like luxury goods or something like that, which are high in demand, they can afford it. Okay, so if people can afford more, Sir, or so yeah, it's like we're saying that when the income of someone rises, the demand for normal good rises, but there's a decrease in the demand for inferior good as income rises. mm-hmm. So it depends on like the type of good and how much income you have. Exactly. So If I were inferior. you, can I say that you देखो, अब अगर हमको पता है कि इंडिया में अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली लोग लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो लोग क्या खरीदते हैं? Luxury. ज्यादा लग्जरी गुड्स खरीदते हैं. तो ये बात बिजनेसेस को पता होनी चाहिए. Mhm. इफ यू आर अ बिजनेस ओनर इन इंडिया, or if you are a strategist in India, Yeah, or if you are anybody who's related to the economy, you must know that people's income is increasing. And what do people do of their income? They buy those goods People which are spend. People spend. quality. They spend better quality on better quality goods. ठीक है. सो सबसे ज्यादा लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदते हैं. सो दैट इफ एट ऑल अ कंट्री वाज अंडर अ प्राइमरी, लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इफ एट ऑल आई मेक दिस एज एक कंट्री है जो कि मेजरली लेट्स से प्राइमरी कमोडिटी में होता है, और फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और फिर वो टर्शरी सेक्टर में बहुत कम पोर्शन उसका टर्शरी सेक्टर है. Hmm. क्लियरली दिस कंट्री इज मोर ऑन एग्रीकल्चर, प्राइमरी कमोडिटीज बनाता है.
बट हाँ बट ग्रेजुअली इस कंट्री के अंदर धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है. With the increased income, people will start demanding more manufactured goods. Yeah. yeah People will start demanding more services because every developed country need more goods and services. Yeah. For example, if we all have more money, we would like to maybe go out on holidays. So we need more resorts, we need more hotels. Yes, so because even if our income is low, the goods that we need, that are necessities, we are still buying that. We are buying in limited quantity, correct? तो धीरे धीरे इस इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कहना ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब प्राइमरी भी बराबर होगा, सेकेंडरी भी बराबर होगा और टर्शरी भी बराबर होगा. और जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज है, बहुत अमीर कंट्रीज जो है, बहुत अमीर कंट्रीज जो है, वो तो डेफिनेटली बहुत कम प्राइमरी में होंगे, थोड़ा बहुत सेकेंडरी में भी होंगे, But most, टर्शरी में मोस्टली टर्शरी होंगे, क्योंकि टर्शरी, हमेशा याद रखना, टर्शरी सेक्टर हैज द मैक्सिमम वैल्यू एड. व्हेन आई से वैल्यू एड मींस कम में आप ज्यादा पैसा कमा लेते हैं. A software engineer, a lawyer, a doctor, you're giving service. yeah, Okay? Do you now understand मैं क्या बोल रहा हूँ? yeah. So you are clearly mentioning over here इसमें कि अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो डेफिनेटली वहां पे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा होगा. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई कंट्रीज डेवलपिंग है, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसकी इनकम इलास्टिसिटी चेंज हो रही है लोगों की. और इनकम अगर और ज्यादा चेंज हो गई, कैन वी से कि ये डेवलप्ड कंट्री होगी, Yeah. तो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंजेस. yep तो इज द क्वेश्चन क्लियर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स? सेशन में मजा आ रहा है? अभी थोड़े से क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं आपको, बोर्ड स्टाइल क्वेश्चंस, जो एएस लेवल और आईबी दोनों में आते हैं, और यू कैन नाउ रिलेटेड टू कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है. mm. Evaluate the impact of PED on government taxation policies, particularly when imposing indirect taxes on goods. I want you to take a minute, think about this question, try and make a diagram, mention some bullet points. Even if you're wrong, it doesn't matter, I will correct you. I want you to try it. Question है evaluate, कीवर्ड है evaluate. Okay? आपको दोनों, you have to write dual answer. Okay? Sir, it's for 15 marker. Yup. तो टैक्सेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना. Yeah. इवैल्यूएट कर रहे हो आप, जज कर रहे हो. uh, तो व्हेन इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, Yeah. ये मैं आप सबको बता चुका हूँ. can we use those नो sub नो, you don't have to say it, मैम. You don't have to. no Don't help the other two students. Whatever you know, just write it on your notebook. We meet after 2 minutes again. I'm just putting you on mute. Try it. कोशिश करो. Make error, it's okay. Again, question सोचो बार बार.
How's the Josh? Need one more minute? I'm writing the second point. But I'm I'm more writing. interested in diagrams, by the way. Yeah, that's what I'm thinking. बहुत easy है. I'll make it easy for you. मैं समझा देता हूँ. If at all you are a government, So, in the diagram, will we show a shift in supply curve, which Hmm, will be leftwards? अच्छा मैं समझाता हूँ क्वेश्चन. You are a government. Let's say you are responsible to make a taxation policy. You come across two products. एक प्रोडक्ट है जो इलास्टिक डिमांड है जिसकी, तो आपने एक डायग्राम बना दिया इलास्टिक वाला. और एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक, आपने वो भी बना दिया. अब आपने दोनों पे टैक्स लगाया. वो ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट बताइए कि टैक्स लगने से बिकॉज ऑफ द पीईडी क्या होता है. So, The the, last, मेरे नहीं नहीं मुझे नहीं बताना. क्वेश्चन समझ में आ गया. yes, sir, yes. डोंट एक्सप्लेन इट टू मी. शिवानी, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? I think I did. ट्राई इट, इट्स ओके. कोई बात Like, नहीं. आई एम ग्रेजुअली मेकिंग यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन के मतलब क्या है. यू आर अ गवर्नमेंट, देयर आर टू काइंड ऑफ गुड्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. आपने दोनों डिमांड कब बना दिए. अब वो कह रहे हैं इस पर टैक्स लगा दो, आपने टैक्स भी लगा दिया. अब वो पूछ रहे हैं इम्पैक्ट बता दीजिए. इम्पैक्ट वर्ड वो आपसे इम्पैक्ट पूछ रहे हैं. इवेल्युएट द इम्पैक्ट. तो जज करिए इम्पैक्ट. mm-hmm. बस. So that's, आई I'm मेड इट just वेरी इजी फॉर यू नाउ. आई एम गिविंग यू 1 minute. trying to phrase it in a way that I understand. The diagram. Focus on the diagram.
चलो गाइस, लेट्स कम बैक. मुझे लग रहा है क्वेश्चन इजी है, बट यू गाइस आर scared. Am I right? You guys are scared too much. ऐसा है क्या? थोड़ा सर. शिवानी, She's not in the meeting. really? क्या हो गया इसको? I don't know. Demand curve. Sir, so I also made one inelastic and one elastic. So I just think that if indirect taxes are imposed on elastic product, then it will be like a negative. No, 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. Yeah. Supply, supply, tax and tax. ठीक है? नंदनी, जब हम किसी भी चीज पर टैक्स लगाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, वो चीज महंगी हो जाती है, राइट? Yes, that's why supplier. Yeah. So what we are showing is that the price has increased from P P1 की. ये कहीं दोबारा तो नहीं ज्वाइन कर रही है? देखिए बड़ी आना तो चाहिए. ओके, एनीवेज. और मैंने ये बना दिया क्वांटिटी, राइट? Yeah. आई कैन क्लियरली सी के जो न्यू क्वांटिटी है दैट इज द राइट क्वांटिटी एट टैक्स, Yeah. और सप्लायर इज द प्रोड्यूसर. Yeah. प्रोड्यूसर इस क्वांटिटी पे यहाँ हिट करते हैं, तो Hmm. मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे. आई कैन क्लियरली सी. क्या आप लोगों को ये बात याद है कि जो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है? Yeah, उसके नीचे वाला producer. कहना है से ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये एक्चुअली में टैक्स बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर, Yeah. क्योंकि प्रोडक्ट इनइलास्टिक है. बहुत इजीली पता है प्रोड्यूसर को कि वो अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कस्टमर तो एडिक्टेड है या वो गुड एसेंशियल है Yeah. इनइलास्टिक. So you will see, you can clearly see that this burden, rectangle A, is much greater than B rectangle. तो consumer surplus पे जो burden है, this is a burden on consumer surplus, Hmm. and this is the burden on. Producer. So you're showing the impact of government policy of a taxation. You're Oh. evaluating it. Similarly, आप यहाँ पे ये बना रहे हो. Oops. So here the producer burden is way more than consumer. क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि अगर मैंने टैक्स बर्डन दिया तो क्या होगा? Nobody is going to buy from me. Demand. Because there are substitute of this product, right? Yeah. तो प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, और आपको यही इवेल्युएट करना था, जज करना था. खत्म, आंसर. Oh. How was it? Easy? Easy था? Yeah. Okay, so now let's look at our next question. Shivani is joining back. She is messaged, but कोई बात नहीं, हम देखते हैं. Last question. एनालाइज करिए, बताइए. एनालाइज का मतलब है गिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन influences the price elasticity of supply in both short-term and long-term scenarios. Can factors of production be mobile?
Yes. Yeah. I am a factor of production. I am a labor. I am a labor for any IB school. Mhm. Am I mobile? Yes, I can travel from one city to another city. I can go and settle in another country. Types, right? Geographically mobility and occupation mobility. Yeah. So let's say there is a high demand for IB economics and business management and TOK teacher in Africa. Mm. डिमांड है लेकिन मेरी विलिंगनेस ही नहीं है. आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ऑफर विच इज बीइंग गिवन टू मी दैट आई शुड गो एंड मूव टू अफ्रीका. आई एम मेरी सैलरी की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है. आई एम Yeah. नॉट लाइकिंग द सैलरी. सो क्या मेरी मोबिलिटी की वजह से शॉर्ट टर्म टीचर्स इन अफ्रीका और लॉन्ग टर्म टीचर्स सप्लाई इन अफ्रीका पे फर्क पड़ेगा ना? Yeah. करेक्ट. Yeah. तो अगर मोबिलिटी शॉर्ट रन में नहीं है, लेट्स से, Yeah. तो थोड़े से ज्यादा और पैसे सैलरी पे करके स्कूल किसी को भी रख लेगा. Yeah. लेकिन लॉन्ग रन में स्कूल इंश्योर करेगा कि हम टीचर को एक कंपेटिटिव सैलरी दें ताकि वो आ जाए. और लॉन्ग रन Yeah. में भी मुझे भी अगर बहुत सारे साल एक ही स्कूल में अफ्रीका के जहाँ पे ऑफर मिला है मुझे, आई विल ऑल्सो लुक एट Yeah. certain factors. So will this mobility of factors of production, how the mobility of this influences the PES. So अगर मैं immobile हूँ तो Yeah. सप्लाई इनइलास्टिक है. अगर मैं Mm. immobile, राइट, तो सप्लाई इनइलास्टिक है ना. Yeah. Despite a higher Yeah. salary, Yeah. very few people like me will be willing to go to a particular country. Yeah. But if the supply is elastic, a slight increase in the salary will attract a lot of suppliers of IB curriculum to go and teach in that particular country. Yeah. Do you now understand what it means? Yeah. डायग्राम बनाऊं या बहुत सिंपल है? सिंपल है बहुत. All you had to do was you had to make diagram. एक तो है सप्लाई इनइलास्टिक है टीचर्स की, और Mm. एक है सप्लाई इलास्टिक है. तो अगर लेट्स से करंट सैलरी मेरी ये है और मेरे जैसे इतने टीचर्स, लेट्स से 10 टीचर्स विलिंग है काम करने के लिए, लेट्स से एक्स सैलरी पे, ये अमाउंट एक्स है, तो बहुत ज्यादा सैलरी पे कर रहे हैं लेट्स से अफ्रीकन कंट्री में, लेकिन बहुत कम टीचर्स विलिंग है Yeah. जाने के लिए. दैट मीन्स सप्लाई इन इलास्टिक है. ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी सिचुएशन हो सकती थी कि ये एक्स सैलरी है और 10 टीचर्स काम कर रहे हैं, सेम सिचुएशन. एक्स टीचर्स 10 टीचर्स एक्स सैलरी के ऊपर या वाई सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा अगर सैलरी बढ़ा देते हैं हम, बहुत थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्विट्जरलैंड में थोड़ी सी भी ज्यादा सैलरी मिलती है, बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं. Yeah. बट मे बी कोई अनफॉर्चुनेट, मे बी एनी पुअर अमेरिकन, सॉरी अफ्रीकन कंट्री जिसमें जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत है काम करने के लिए, डिस्पाइट वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मे बी आई एम जस्ट सेइंग फ्यू ऑफ अस और many of us, or depending on the individual elasticity, maybe some people are not willing to supply their services, they are immobile. Yeah. It's all personal choice, right? Now you understand क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में? But I just have one question. So they had mentioned factors of production here. You have given an example of just labor. So do we also take other factors of production in mind? Tell me another factor of production which is mobile. Maybe money, Yeah. but you can't take land, Yeah. but you No, can, that's not. but you can take entrepreneurship. Yeah.
एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। Yeah. डिफाइन एंटरप्रेन्योर। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? One who's ready to take risks. ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, And एंटरप्राइज। land is resources. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बस ये बताइए। An Like, entrepreneur is someone who combines the other 3 factors of production and yeah, uses them efficiently. yeah, नंदनी भी entrepreneur है, मैं भी एक entrepreneur हूँ, अनहद भी एक entrepreneur है। yeah, नंदनी के पास भी 10 एकर्स लैंड है, मेरे पास भी 10 एकर्स लैंड है, अनहद के पास भी 10 एकर्स लैंड है। yeah, नंदनी के पास भी 10 करोड़ रुपए है, मेरे पास भी 10 करोड़ रुपए है, अनहद के पास भी 10 करोड़ रुपए है। नंदनी के पास भी 10 लेबर है, मेरे पास भी 10 लेबर है, अनहद के पास भी 10 लोग उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए हैं। बट लेट्स से नंदनी रोज 100 आइटम्स बनाती है इन सब रिसोर्सेज को यूज करके, मैं yeah. 150 आइटम्स बनाता हूँ, अनहद 250 आइटम्स बना लेता है। कैन वी से अनहद की एंटरप्रेन्योर स्किल्स हम सबसे बेटर है? वो सेम रिसोर्सेज से ज्यादा काम, More efficient, yeah. मोर एफिशिएंट, राइट? सो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? इट इज यूटिलाइजिंग द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली, Yeah, राइट? हर एंटरप्रेन्योर यही तो करता है। yeah, आपके डैड के कंपेटिटर्स भी होंगे नंदनी। हाउ इज yeah. ही हाउ इज ही बेटर एंटरप्रेन्योर देन द अदर? He's combining the same factors of production and producing better efficiency. Yeah. ठीक है? So I've just exposed you with some questions, Nandini. I am sure you're going to do better in your test tomorrow. You Yeah. know YD वाला, YD का डायग्राम याद है? Yeah, yeah, yeah. ओके, YD का डायग्राम था। We're showing a change shift in the supply curve to show the effect on the demand curve. नहीं नहीं नहीं, YD, अच्छा YE। वो ठीक है या इलास्टिक इन या अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी इन इलास्टिक गुड्स की तरफ बहुत थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है, हम्म करेक्ट? जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, आप बेटर आटा, बेटर चावल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, आप थोड़ी सी आप उनकी डिमांड बढ़ा देते हो। या ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है आपके घर में, यू वोंट स्टार्ट ईट 10 चपातीज। या बट आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज के लिए बढ़ती है? देयर इज a shift from D to या इलास्टिक गुड्स के लिए। डू यू एग्री? इलास्टिक गुड्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, सबसे पहले हम नई गाड़ी लेते हैं, नई वॉच लेते हैं, नई मोबाइल लेते हैं, नया सोफा लेते हैं, नया घर लेते हैं, रिमेम्बर? या और हमारी जब इनकम बढ़ती है तो हम कुछ गुड्स को गिव अप भी कर देते हैं, तो वो हमारे लिए इंफीरियर गुड्स हैं, जिनको हम नहीं खरीदते हैं, जिनकी डिमांड the one लेफ्टवर्ड। we adapt I mean are normal goods and then the one we leave तो out is the inferior. D to D3 इज इंफीरियर गुड, Yeah. और D to D1 और D to D2 इज नॉर्मल। Okay. ये YD का है। Yeah. Read your question properly tomorrow. I am 100% sure that you're going to do far better than your rest of your class. Use Yeah. examples. Use examples. Write more. Make big diagrams. Explain the diagrams. Okay? Okay. Yeah. आपको आपको एक याद रखना है, ये dead. Yeah. Diagram, explanation, and analyze, and then define. Or define, explain, analyze, diagram. Yeah.